آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو چاہے وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام میں آپ سب کو سلام، اور میں سب 7 اسٹار میڈیا کے تھرو جو ہمیں جوائن کرتے ہیں، واچ کرتے ہیں، میں امید کرتی ہوں کہ خداوند نے آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھا، سلامتی بخشی ہے، اور آج تک اس نے آپ کو سنبھالا ہے، صحت تندرستی دی، سانسیں بخشی، اور ہر طرح کی دنیاوی اور روحانی برکات سے اس نے آپ کو مالا مال کیا۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آج کی شام کے لیے کہ خداوند ہمیں ایسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ ہم دنیا کے کاموں سے الگ ہو کے اس کی پاک حضوری میں آئیں، شکر گزاری کریں، اس کو سجدہ کریں، اس کے نام کی تعریف کریں، اور اس کی دی ہوئی برکتوں اور رحمتوں کو یاد کرتے ہوئے اس کی شکر گزاری کریں۔ ہمیں ہمیشہ جب بھی موقع ملے خداوند ہمیں مواقع فراہم کرتا ہے، لیکن ہم اگنور کرتے ہیں، اوائڈ کر جاتے ہیں کہ نہیں، شاید خدا کی حضوری میں جانا ہمارے لیے اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، گھر بیٹھنا یا ادھر ادھر آنا جانا اس میں ہی لوگ انجوائے کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، خوشی مناتے ہیں۔ لیکن میں کہتی ہوں کہ جو خداوند کی حضوری میں برکت ہے، خوشی ہے، شادمانی ہے، اور اس کا آسمان کھلتا ہے، اور وہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھتا ہے، اور ہر طرح کی بدی کی قوتوں، شیطان کی تاثیروں سے وہ ہمیں بچاتا ہے۔ سو ہمیں چاہیے کہ ہم وقت کو نکالیں، اس کے پاس آئیں، اس کی شکر گزاری کریں، اور اپنے آپ کو اس کی حضوری میں لا کے اس سے برکتیں پائیں، تازگی پائیں، کہ اس کی حضوری میں ہی تازگی ہے، اس کی حضوری میں ہی اطمینان ملتا ہے۔ ہمیں دنیا کے کاموں سے، یہ دنیا کی جو مصروفیات ہے، یہ دنیا کے کام ہیں جو یہ تو نہ ختم ہونے والے ہیں جب تک انسان کی سانس ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس کی حضوری میں آ کے اس کی شکر گزاری کر سکیں، اس کی حضوری میں آ کے اسے پکار سکیں، اپنی مناجاتیں، اپنی درخواستیں اس کو اس کے سامنے پیش کرنے والے، کیونکہ خداوند ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس سے دل لگاتے ہیں۔ جب ہم اس کی حضوری میں آ کے دعائیں کرتے ہیں، اس سے بات چیت کرتے ہیں، تو خداوند ہمیں اس کے عوض برکت دیتا ہے اور اجر عطا کرتا ہے۔ سو آئیں خداوند کی حضوری میں ہم جھکیں گے اور اس کو سجدہ تعظیم پیش کریں گے، اس کی شکر گزاری کریں گے کہ اس نے ہمیں یہ موقع بخشا، اس کی حضوری میں ہم آئے ہیں، اس کی حضوری میں ہم آ کے اپنی مناجاتیں اور شکر گزاریاں رکھ رہے ہیں۔ سو آئیں ہم خداوند کے قدموں میں جھکیں، اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں گے۔ جو 7 اسٹار میڈیا کے تھرو ہمارے ساتھ اس رفاقت میں شامل ہیں، ان سے بھی کہوں گی کہ وہ ہمارے ساتھ مل کے دعا کریں اور اپنے سروں کو جھکائیں اور شکر گزاری کریں، اور دعا میں رہنمائی ہماری پیاری بہن مسز نصرت کریں گے۔ شکر گزاری کی دعا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا تیرا شکر، تیری حمد، تیری تعریف اور تیری ستائش، خدا تیرا شکر کرتے ہیں تیری ساری نعمتوں اور برکتوں کے لیے، تیری ان بخششوں کے لیے خداوند جو تو ہمیں بن مانگے دے دیتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خدا تیرا شکر، تیری تعریف ہو، تیری تمجید ہو کہ تو ہماری فکر کرتا ہے، تو ہمیں سنبھالتا ہے۔ ہاللیلویہ،
हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र हो। अब आप तेरा शुक्र करते हैं आज की इस मीटिंग के लिए खुदा, जिसमें खुदा हम मिलकर खुदा तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदा, तेरे पाक कलाम में से सीखते हैं खुदा, अपनी मुनाजात तेरे हुजूर में रखते हैं खुदा। तेरा शुक्र हो खुदा इस जगह के लिए और खुदा इस सारे इंतजाम के लिए खुदा मैं तेरा शुक्र करती हूँ और तुझसे मिन्नत और दरख्वास्त करती हूँ खुदा कि तू इस छोटी जमात को और ज्यादा बढ़ा ताकि और ज्यादा लोग खुदा मुस्तफीद हों। ओ खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी हमद तेरी तारीफ हो, तमजीद हो खुदा, तेरा शुक्र हो। मैं भाई यास्मीन को तेरे पाक हाथों में सौंपती हूँ। ओ खुदा अपनी बंदी को अपने पाक रूह से मुलबस कर खुदा, ताकि खुदा जब वो कलाम करती हैं तो खुदा तेरे यीशु मसीह नाम से खुदा कलाम मुअस्सर हो। हालेलुया। एक एक जान को जो वॉच कर रही है खुदा तेरे हाथों में सौंप देती हूँ और तेरे पाक रूह का भरपूर मज़ा मांगती हूँ खुदा। तू दिलों को खोल दे खुदा, तू कानों को खोल दे खुदा, समझने वाला दिल अता कर खुदा और अमल करने वाले खुदा ज़हन और खुदा हाथ और पैर खुदा अता कर खुदा, ताकि खुदा तेरे पाक कलाम की खुशखबरी को लेकर खुदा हम हर उस शख्स पर तक जाएं खुदा जो अभी तुझे नहीं जानते। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो खुदा, मैं तेरा शुक्र करती हूँ मुल्क पाकिस्तान के लिए खुदा उसके सारे हुक्मरानों को खुदा तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदा, तेरे बंदों को खुदा जितने जितने खुदा लोग रहते हैं इस मुल्क में, एक एक बंदे को खुदा, एक एक बहन को खुदा, एक एक बच्चे को खुदा मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ खुदा। हर एक की ज़रूरत के मुताबिक खुदा, खा जिस्मानी ज़रूरत है, खा रूहानी ज़रूरत है खुदा, तू मुहैया कर, तू मुहैया करने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा बेरागबी से खुदा तू लोगों को बाज कर। हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो खुदा, तेरा शुक्र हो खुदा। पास्टर जी को और सारी खुदा चर्च इंतजामिया को खुदा मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ और खुदा तेरा पूरा फजल हाथ हर एक जान के ऊपर चाहती हूँ यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। खुदा उनका शुक्र और उसके नाम की तमजीद। वो जो फजल से भरा हुआ खुदा है, हम पर रहम करता है, हमें संभालता है, तो फिर क्यों ना हम उसके पास आए जिसने हमें सांस से बख्शी हुई है, बड़ी बड़ी वबाओं बलाओं से उसने हमें बचाया। तो हमें चाहिए कि हम उसके पास आए, हम उसकी इबादत करें, हम उसका कलाम पढ़ें, हम उसका कलाम सुने, हम दुआएं करें मिलकर, ताकि खुदावंद हम सबको और हमारे घरानों को बरकत दे। क्योंकि खुदावंद ऐसे लोगों को पसंद करता है जो उसकी पाक हजूरी में आते हैं और उसके नाम को सर बुलंद करते हैं। हमें भी चाहिए कि हम दुनिया के कामों से अलग हो के उसके पास आए। खुदावंद हमें बुलाता है, हमें दावत देता है कि बहुत से थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्योंकि आराम और तसल्ली और इत्मीनान उसके पास, वही हमें तसल्ली देता है, वही हमें आराम देता है, वही हमें हर तरह की वबाओं बलाओं से बचाता है, वही हमारा बोझ उठाता है, वही हमें आजमाइशों से निकालता है, वही हमें बीमारियों से शिफा देता है। तो फिर क्यों ना हम उसके पास आए, क्यों ना हम उसके पास आके उसकी शुक्रगुजारी करें और उसकी आवाज़ को सुने, उसके कलाम को सुने। तो खुदावंद अपना आसमान खोल के हमें अपनी बरकतों से मालामाल करता है। सो आज शाम जो खुदावंद ने अपना जिंदा और मुकद्दस कलाम जो हमें अता किया है, आज हम उसमें से सीखेंगे, पढ़ेंगे
کیونکہ اس کے زندہ کلام میں بڑی قدرت پائی جاتی ہے. اس کے کلام، اس کا پاک اور زندہ کلام پر اثر ہے، اور جہاں نازل ہوتا ہے اپنا اثر دکھاتا ہے. سو آئیں ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھتے ہیں. میرے ساتھ مل کے خداوند کے کلام کو کھولیں. جن کے پاس جو 7 سٹار میڈیا کے تھرو ہمیں واچ کرتے ہیں، اپنے کلام کو کھولیں اور ہم سب پڑھیں گے خداوند کے زندہ کلام میں سے، اور سیکھیں گے کہ خداوند اپنے لوگوں کے ساتھ کیا بولتا ہے، کیا فرماتا ہے. آج جو ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھیں گے اور پڑھیں گے، وہ میں آپ کے سامنے پرانا عہد نامہ، جس میں ہم دیکھیں گے یرمیہ 4 باب اور اس کی 6 آیت. وہ میں آپ کے سامنے خدا کا کلام پڑھوں گی. تم سیون ہی میں جھنڈا کھڑا کرو، پناہ لینے کو بھاگو اور دیر نہ کرو، کیونکہ میں بلا اور ہلاکت شدید کو شمال کی طرف سے لاتا ہوں. خداوند کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو. خداوند کا زندہ کلام جہاں سے بھی ہم پڑھیں، ہم نئی نئی باتیں سیکھتے ہیں. اس کا کلام ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے. اس کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے. ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ یہ کلام، یہ بائبل مقدس میں سے فلاں آیت، فلاں جگہ سے یہ چیپٹر ہم نے پڑھا ہے، لیکن جب ہم اس پر غور کرتے پڑھتے ہیں تو پھر ایک نئی بات ہم اس میں سے سیکھتے ہیں. جتنی دفعہ آپ اس کو پڑھیں گے، کھولیں گے، اب نئی بات اس میں سے سیکھیں گے. تو آج یہ آپ کے سامنے جو بائبل مقدس میں سے یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس میں ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ خداوند کیا فرماتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ. یرمیہ 4 باب 6 آیت میں، یعنی پناہ لینے کو بھاگو اور دیر نہ کرو. پناہ لینے کو بھاگو. کن کو کہتا ہے پناہ لینے کو بھاگو؟ ان لوگوں سے جو خدا سے دور ہیں، جو بدی کی طرف مائل ہیں، جو خدا کی حضوری سے دور ہیں، جو خدا کے گھر میں نہیں آتے، جو اس کے کلام کو نہیں پڑھتے، جو اس کے حکم اور قوانین کو نہیں مانتے. ان کے لیے یہ کلام آج جو خداوند نے کیا ہے، لکھا ہوا ہے کہ پناہ لینے کو بھاگو اور دیر نہ کرو. ہمیں خداوند کی پناہ میں رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کس طرح کوشش کرنی چاہیے؟ پناہ لینے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کیسے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کی پناہ میں آ جائیں؟ جس طرح بائبل مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، پیدائش کی کتاب میں ہی سے، کہ نوح کے بارے، جس طرح خداوند نے اپنا راست باز بندہ، نیک بندہ، جس کو خداوند نے چنا کہ وہ منادی کرے، لوگوں کو بچانے کے لیے، لوگوں کو توبہ کرنے کے لیے ان کے سامنے منادی کرتا تھا، انہیں بتاتا تھا کہ بدی بہت حد سے زیادہ بڑھ چکی ہے، گناہ بڑھ چکا ہے. تو خداوند نے دیکھا کہ جب گناہ بڑھ چکا ہے تو پھر اس نے اپنے راست باز اور اس نیک بندے کو، نوح کو تیار کیا کہ جا کے لوگوں کو تعلیم دے اور انہیں بتائے کہ آپ بدی سے بچ جاؤ، آپ گناہ سے بچ جاؤ، آپ خداوند کی پناہ میں آ جاؤ، بھاگو اور جلدی کرو اور دیر نہ کرو. لیکن لوگوں نے اس کی بات پہ کان نہ دھرا، لوگوں نے انسنی کی، وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے،
वो नूह की हंसी उसकी उड़ाते थे कि ये बंदे को क्या हो गया कि लोगों में जाके ये मनादी करता और शोर मचाता। उस वक्त लोग, जिस तरह आज के दौर में भी आप देखो, खुदा के खादम चिल्ला चिल्ला कर पुकारते हैं कि खुदावंद के घर में आओ, उसकी हजूरी में आओ, वही हमारी पनागाह है। खुदावंद का घर हमारी पनागाह है, उसके पास आओ। लेकिन लोग अनसुनी करते हैं, लोग नहीं आते। लोग अपने दुनिया के कामों में मसरूफ हैं, शादी ब्याह में मसरूफ है, पार्टियों में मसरूफ हैं और बहुत से ऐसे काम जिनमें वो मसरूफ हैं, लेकिन खुदावंद की पनाह में नहीं आते। उस दौर में भी नूह चलाता था, पुकारता था लोगों को, लेकिन लोग उसकी नहीं सुनते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन एक वक्त आया जब खुदा को कहर आ गया कि मैं इस दुनिया को फना कर दूंगा, मैं इस दुनिया को बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि लोग जो थे वो बदी में गिर चुके थे, गुनाह में गिर चुके थे, उसके हजूरी में आना पसंद नहीं करते थे, उसकी पनाह में आना पसंद नहीं करते थे। तो फिर उसने अपने बंदे को कहा कि अपने लिए कश्ती तैयार कर, जिसमें तू और तेरा घराना बच जाएगा और उसमें महफूज हो जाओगे, क्योंकि मैं तूफान लाने को, मैं पानी से दुनिया को फना कर दूंगा। तो नूह ने हुक्म माना, उसकी तामील की खुदावंद की, और उसने कश्ती को बनाना शुरू कर दिया कि जहां उनको पनाह मिलेगी, जिसमें वो महफूज हो जाएंगे, जिसमें खुदावंद उन्हें महफूज रखेगा। और जब उसने कश्ती बनाना शुरू की तो उस कश्ती को भी लोग मजाक करते थे, उसकी भी लोग हंसी उड़ाते थे कि ये देखो ये अपने लिए क्या बना रहा है। तो क्या हुआ कि कहते हैं कि जब एक एक हथौड़ा भी कश्ती बनाने में, कील ठोंकने में लगता था, तो उस थोड़े से आवाज आती थी और पुकार आती थी कि बच जाओ, बच जाओ, इस कश्ती में आ जाओ, खुदावंद की पनाह में आ जाओ। और जब वो कश्ती तैयार होगी फिर भी लोग हंसते, लेकिन खुदावंद ने अपने बंदा को कहा कि तू और तेरा घराना, तेरे बहू बेटियां, तेरी बीवी और जो कुछ तेरा माल जानवर जो भी है, जोड़ा जोड़ा लेके उस कश्ती में आ जाओ। और वो कश्ती भी इस तरह की कि वो इतनी उसकी मंजिलें थी कि जिसमें हर चीज महफूज होगी। और जब वो उसकी कश्ती में आ गए तो तूफान शुरू, बारिशें शुरू, और पानी आहिस्ता 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 ऊपर चढ़ता गया और कश्ती ने उसमें तैरना शुरू किया। और फिर वो लोग जो मजाक उड़ाते थे फिर वो कश्ती की तरफ भागे कि हमारे लिए भी दरवाजा खोल दे ताकि हम कश्ती में आके महफूज हो सके, इस पनाह में आ जाए ताकि हम महफूज हो जाए। लेकिन तब खुदा ने दरवाजा बंद कर दिया था। आज भी खुदा के लोग खादम पुकारते हैं, खुदावंद की पनाह में आ जाओ, उसके गजब से डर जाओ, उसके कहर से डरो कि एक दिन वो आने वाला है जब खुदावंद यीशु मसीह आ जाएगा तो ईमानदार और खुदा के लोग एक तरफ और जो बदी और गुनाह करने वाले हैं वो एक तरफ हो जाएंगे। तो फिर वो पुकारेंगे लेकिन दरवाजा बंद हो चुका होगा। और जब दरवाजा बंद हो गया कश्ती का, लोग फना हो गए, लोग बर्बाद हो गए, लोग पानी में बह गए, मर गए, हर तरफ तबाही तूफान ने मचा दी थी। आज भी हम खुदावंद की मुहाफ़ज़त में आना चाहते हैं तो उसके पास आएं, उसकी इबादत करें, उसका कलाम पढ़ें, उसकी हजूरी में आए, उससे ताजगी पाएं, उससे बरकतें पाएं, नजात पाएं और अपने घराने सवेर कश्ती में आ जाओ ताकि उसकी पनाह में आ जाओ।
खुदावन हमें अपनी पनाह में लेना चाहता है, वो हमें बुलाता है, वो पुकारता है, लेकिन हम उसकी नहीं सुनते। आज भी खुदा के खादम पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, दुआएं करते हैं, बरगश्ता लोगों के लिए दुआएं करते हैं कि वापस उसकी पनाह में लौट आओ। उसकी पनाह में ही हर तरह की मुहाफ़ज़त है, सलामती है, बरकत है, नजात है। उसके पास वापस लौट आओ। उस वक्त दरवाजा बंद हो गया, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि आज भी उन लोगों के लिए जो उससे दूर हैं दरवाजा खुला हुआ है। खुदावंद पुकारता है, दरवाजा खुला है। यीशु ने कहा दरवाजा मैं हूं और मैं तुम्हारा चरवाहा हूं और तुम मेरी भेड़े हो। लेकिन जो उसकी भेड़े हैं वो उसकी आवाज सुनती और उस दरवाजा में से दाखिल होती हैं, लेकिन जो उसकी भेड़े नहीं वो उसकी आवाज को नहीं सुनती हैं, वो उससे और दूर भागती। ये बरकत नहीं है और इसका कोई अजर भी नहीं है जो हम दूर भागते हैं खुदा से, उसकी पनाह से, उसकी हजूरी से हम भाग जाते हैं। नूह ने अपना काम अंजाम दिया तो वो अपने घराने समेत बच गया, क्योंकि वो खुदावंद की पनाह में आ गया था। आज भी खुदावंद कलाम करता है अपने लोगों के साथ, अजाब से बच जाओ, कहर से बच जाओ, मेरे पास आओ। कलाम में लिखा है मेरे पास आओ, आराम मेरे पास है, इत्मीनान मेरे पास है, शिफा मेरे पास है, नजात मेरे पास है, खानदानी बरकतें मेरे पास हैं, रूहानी बरकतें मेरे पास हैं। आओ, भागो उसकी तरफ, देर ना करो, सुस्ती ना करो, क्योंकि वो जल्द आने वाला है और दरवाजा खुला है हमारे लिए। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ते हैं, जैसे उन 5 अक्लमंद कुमारियों की तरह और 5 बेवकूफ। दरवाजा खुला था, लेकिन वो सुस्ती, लापरवाही कि जब तक दूल्हा आ जाएगा हम दूर से आवाज सुनेंगे, हम और जाके तेल ले आएंगे, है ना। तो लेकिन अक्लमंद जो थी ना, उन्होंने पहले से तैयारी की हुई थी, जैसे तेल नहीं रात में मुकन देना, पता नहीं कदों दूल्हा आ जाए। कई दफा हम अपने घरों में भी ऐसे तैयारी करके रखते, लाइट का कोई पता नहीं कब चली जाए, लेकिन हम तैयारी रखते हैं। रात को हम पानी भर लेते हैं, सुबह हम ये कर लेते, ये करते, पता नहीं लाइट कब चली जाए, तो हम तैयारी करते हैं ना। तो इसी तरह हमें खुदावंद के दरवाजा में से दाखिल होने के लिए तैयारी करनी चाहिए कि कब दूल्हा आ जाए। तो ये बात है कि हम दुनियावी इन बातों से भी हम सीख लेते हैं कि हम कैसे करते हैं, ये भी कर लो, ये भी कर लो, लाइट ना चली जाए, शादी पे जाना है, कपड़े प्रेस कर लो, ऐसे कर लो, तब हमें बड़ी फिक्र है। लेकिन कश्ती का दरवाजा अभी तक हमारे लिए खुला हुआ है, सो हमें तैयारी करनी चाहिए, उसकी तरफ भागना चाहिए कि दरवाजा खुला है, हम उसकी तरफ भागें और हम बच जाएंगे, क्योंकि मसीह हमारी चट्टान है, मसीह हमारी कश्ती है, हमने उसमें दाखिल होना है। मसीह की कश्ती में जो दाखिल हो जाता है, जो उसकी कश्ती में आ जाता है, वो उसमें महफूज हो जाता है, उसकी पनाह में आ जाता है। हमें कोशिश करना है और उसकी तरफ हमने भागना है, हमें तैयारी पकड़नी चाहिए कि हम कश्ती में दाखिल होंगे, यीशु की कश्ती में हम उसकी पनाह में आ जाएं, भागें, दौड़ें, जल्दी करें और कोशिश करें कि हम दुनिया के बदी के कामों से और दुनिया की दूसरी मसरूफियात में जिसमें हम फंसे हुए हैं, हम
कोशिश करें कि हमने एक दिन उधर भी जाना है, उसके लिए भी हमने तैयारी करनी है। कोशिश करो, जिस तरह बाइबल मुकद्दस में मैंने अभी पढ़ा है कि भागो और देर ना करो और सुस्ती ना करो खुदावंद की हजूरी में आने के लिए। अब चर्च में जब हम आते हैं अक्सर ऐसा होता है, और लोगों से बातें भी सुनती रहते हैं, खानदानों में कहते हैं ठहर जाओ चले जावांगे, अजय तक गीत गा रहे होंगे, कलाम का टाइम होएगा तो चले जाएंगे। और बड़े लोगों को मैं देखा जब प्रस्तुत हो चुकी होती है तो फिर लोग आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो सुस्ती, काहली, लापरवाही, वो प्रस्तुत को समझते हैं कि ये इबादत का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ गाना बजाना है, तो म्यूजिक बजाना है। जो हम उसको देते हैं पूरा टाइम, पूरा वक्त उसको देते हैं, उसी में हमें बरकत मिलती है। आपको नहीं पता किस वक्त खुदावंद का जलाल आप पर जाहिर हो जाए, किस वक्त उसका वादा आप पर पूरा हो जाए जो आप उससे मांगते हो। उसका ताकत लगता है, उसका जलाल जाहिर होता है, लोग नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं। दाऊद की तरह प्रस्तुत एक खास हिस्सा है इबादत का, सो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसमें भी शामिल हो जाए। ये ना हो कि नूह की तरह दरवाज़ा बंद हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? हम उस परेशानी और अजाब और तूफान में और आजमाइशों में हम झगड़े जाएंगे। बेशक खुदावंद हमें निकाल लेता है आजमाइशों से, परेशानियों से, लेकिन उनको जो उसकी तरफ दौड़ते हैं, जो उसके पास आते हैं, जो उसके पास आके इल्तिजाएं करते हैं, उसकी तरफ रजू लाते हैं, उसे पुकारते हैं कि हमारे लिए दरवाजा खोल, तो फिर ऐसे लोगों के लिए खुदावंद दरवाजा खोलता है, वो बंद नहीं करता। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है, देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। ते जदों यसु खटखटांदा है, असी होर गहरी नींद सौने आ, असी होर पासे लापरवाहियां च टुट जाने आ। वो अज ते साडे मेहमान आ, चले जावांगे, अगले बुध नूं जावांगे, अगले संडे नूं जावांगे। देख मैं दरवाजे पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर कोई मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ क्या करूंगा? खाना खाऊंगा, यानी उसके साथ रिफाकत रखूंगा, उसके घराने को बरकत दूंगा, उसे बरकत दूंगा, रूहानी बरकत दूंगा, खानदानी बरकत दूंगा, उन्हें हर तरह की परेशानियों और आजमाइशों से भी निकाल लूंगा जो उसके साथ रिफाकत रखते हैं। जिस तरह ज़बूर 37 और उसकी 39 और 40वीं आयत अगर आप पढ़ें तो वहां पर उन लोगों के बारे में क्या लिखा हुआ है जो उससे प्यार करते हैं। 39वीं और उसकी 40वीं आयत। लेकिन हाँ जी, आप पढ़ें नुसरत। 39। लेकिन साधकों की निजात खुदावंद की तरफ से है, मुसीबत के वक्त वो उनका मुहक्कम किला है और खुदावंद उनकी मदद करता और उनको बचाता है। वो उनको शरीरों से छुड़ाता और बचा लेता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें बना ली है। आमीन। कि अगर हम पर मुसीबत भी आए, बीमारी आ जाए, परेशानी आ जाए, आजमाइश आ जाए, लेकिन जिन्होंने खुदावंद को अपनी पनाहगाह, अपना मुहक्कम कला बना लिया है, वो शरीरों से भी बचाता है और हर तरह की वबाओं बलाओं से भी हमें बचा लेता है, क्योंकि वो हमारी पनाहगाह है, वो हमारा मुहक्कम कला है, हमें संभालता और हमें बचाता है। ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है।
खुदावंद उनके लिए सब कुछ करेगा, उनको बचाएगा भी और उनको खुशी भी देगा और हर तरह की बरकतें भी उन्हें अता करेगा। और फिर लिखा हुआ है कि वो उन्हें अपनी पनाह में महफूज भी रखेगा। उनको जो उसकी तरफ लपकते हैं, रुजू करते हैं, उससे दिल लगाते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसकी प्रस्तुति करते हैं, अपनी मुनाजातें उस पर रखते हैं, चाहे हम किसी भी हालत में, हालात हमारे कैसे हैं, लेकिन हम खुदावंद की तरफ रुजू लाते हैं, तो वो हमारी हर ज़रूरत को वो पूरा करता है। ज़बूर 91 अगर आप पढ़ें तो उसमें भी हम देखते हैं कि खुदावंद उन लोगों को कैसे अपने पनाह में रखता और उन्हें महफूज रखता है। ज़बूर 91 उसकी पहली आयत आप पढ़ें। जो हर ताला के पर्दा में रहता है, वो कादरे मुतलक के साया में सुकूनत करे। मैं खुदावंद के बारे में कहूँगा, वो भी मेरी पनाह और मेरा घर, और वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल। आमीन। कि जिस तरह खुदावंद पर तवक्कल रखने वाले, रास्ते के साथ उस पर उसके साथ चलने वाले, वही आसमान की खास पनाहगाह में उनके साथ महफूज होंगे, क्योंकि वो हमारी पनाहगाह है। वो हक ताला के पर्दे में रहता है। जिसने उस पर तवक्कल किया है उसने उनको महफूज रखा हुआ है। इसमें खास बात और हकीकत ये बयान की गई है कि जो लोग उसकी रिफाकत में जिंदगी गुजारते हैं वो हर वक्त महफूज रहते हैं, उसकी हिफाजत में रहते हैं और उसकी पनाह में रहते हैं। ये खुदावंद के कलाम में लिखा। आप घर जाके बच्चों को कह सकते हैं कि ज़बूर 91 पढ़ो, तो फिर आप इस पर गौर करोगे कि खुदावंद अपने लोगों के लिए क्या क्या फरमाता है। वो हमारी पनाहगाह है, वो हमें अपनी हिफाजत में रखता है। जो लोग उसकी रिफाकत में जिंदगी गुजारते हैं वो हर वक्त महफूज रहते हैं, क्योंकि उसकी पनाह में है। सच्चे ईमानदार की खसूसियत ये है कि वो हक पर्दा में, हक ताला के पर्दा में रहता है, यानी उस खुफिया जगह में रहते हैं जहां पर वो खुदा के इत्मीनान में रहते हैं, खुदा के साथ मुतमिन रहते हैं, हक ताला के पर्दे में रहते हैं। खुफिया जगह है हक ताला का पर्दा, जहां पर इत्मीनान है, वो लोग मुतमिन हैं, वो लोग शादमान हैं, वो लोग खुश हैं। खुदावंद अपने खुदा के साथ, वो उनके साथ हमेशा वो उसकी तरफ रजू रखते हैं और खुदावंद भी उनकी तरफ रजू लाता है। ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, मेरी तरफ रजू लाओ तो फिर मैं भी तुम्हारी तरफ रजू लाऊंगा। सो हमें जरूरत है कि हम उसकी तरफ रजू लाएं, जो उसकी पनाह में रहते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसको सिजदा करते हैं, वो कादरे मुतलक की पनाह में रहते हैं। और फिर आगे जो जो आप पढ़ते जाए ज़बूर 91 तो वहां पर लिखा हुआ है किस तरह वो हमें बलाओं और वबाओं से भी हमें बचा लेता है। जो लोग हक खुदा ताला को अपना मस्कन बना लेते हैं वो उसकी सुकूनत में रहते हैं। खुदा खुद उनका मुहाफिज होगा, वो उनकी पनाहगाह होगा, वो तुझे अपने परों से छुपाएगा, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों के साए में छुपा लेती है। मत्ती की इंजील 23वां बाब 37वें आयत में पढ़े तो लिखा हुआ है, मुर्गी ना सिर्फ अपने बच्चों को अपने परों के नीचे बना देती है बल्कि उनको अपने परों में छुपा लेती है। जब वो खतरा या ऐसा देखती है कोई ऐसा जानवर आ जाए तो वो फौरन अपने पर को फैला लेती है और अपने बच्चों को महफूज करती है। मत्ती की इंजील 23वां बाब 37वें आयत में लिखा हुआ है, बल्कि वो महफूज भी रखती है और उन्हें बड़े प्यार और मोहब्बत से पालती है। कि मुर्गी किस तरह अपने बच्चों को अपनी पनाह में रखती है, वो उसे संभालती है,
खतरे से महफूज रखती है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में ये उनके साथ एक मिसाल दे के खुदावंद यीशु मसीह ने मुर्गी की मिसाल दी कि वो किस तरह अपने बच्चों को संभालती है, और फिर एक एक दाना चुन के वो अपने बच्चों के मुंह में डालती है, हिफाजत भी करती है, महफूज भी रखती है, फिर उनको पालती भी है और उनको खाना भी खिलाती है। बाइबल मुकद्दस में हम अगर देखते हैं कि जिस तरह मैं ये कह रही थी कि लोग दुनियादारी में आज भी उसी तरह जकड़े हुए हैं। लोग आज भी दौलत के पीछे, कमाने के पीछे, जॉब के पीछे, बेशक हमें इस दुनिया में रह के इन सारी चीजों की जरूरत है, लेकिन हमने खुदावंद को छोड़ के सिर्फ इनको ही अपना खुदा नहीं बना लेना। हमें खुदावंद के पास भी आना है, जो हमें ये बरकतें देता है, हमें सेहत देता है, हमें तंदुरुस्ती देता है, हमें अकल देता है, हमें दनाई देता है कि हम ये काम कर लें, यहाँ से हमें अच्छा पैसा मिलेगा, यहाँ से जॉब से हमें ये तरक्की मिलेगी, कमाई का जरिया जो भी है। अगर हम उसकी तरफ लगे रहते हैं तो फिर हमें खुदावंद की तरफ भी अपना रजू लाना चाहिए। अगर आप बाइबल मुकद्दस में मिसेस नुसरत आप पढ़ें इमसाल 10वां बाब, उसकी 15वीं और 16वीं आयत में देखें कि क्या लिखा हुआ है। इमसाल 10वां बाब, हाँ जी पढ़े 15वीं और 16वीं आयत। दौलतमंद की दौलत उसका मुहक्कम शहर है, कंगाल की हलाकत उसकी तंगदस्ती है, सादक की मेहनत जिंदगानी का बायस है, शरीर की इकबालमंदी गुनाह। आमीन। जिस तरह लिखा है कि दौलतमंद की दौलत उसका, कि जो दौलतमंद है, जिनको खुदा ने इतना कुछ दे दिया, दौलत दे दी, दुनिया की जरूरतें दे दी, वो सिर्फ उन्हीं पर इन्सार करते हैं कि ये उन साडा सब कुछ, सानू सब कुछ मिल गया, दुनिया दी हर जरूरत साडे कोल है, साडी आने वाली नस्लां ने भी साडे कोल है, साडे कोल हर जरूरत दी दुनियावी चीज़ां ने। लोग उसी को अपना मुहक्कम शहर बना लेते हैं, वो उसको ही कहते हैं ये साडी हुण पनाहगाह है। सब कुछ ले लिया। लोग आज भी हम देखते हैं कि दूसरे मुल्कों में जाने के लिए क्या क्या करते हैं, वो कहते हैं शायद उत्थे जाके सी महफूज हो जाएंगे, साडी पनाहगाह ओह ही है। भागते हैं पनाह लेने के लिए, पनाह गुज़ीर बने हुए हैं, भागते हैं, बैठे रहते हैं, कुछ नहीं बनता, फिर वहां भी जाके परेशान होते हैं, फिर पीछे की तरफ भागने की कोशिश करते हैं। ये दौलत, ये दुनिया की चीजें, ये हमारी पनाहगाह नहीं है। हमारी पनाह खुदावंद यीशु मसीह है। हमारी पनाह यीशु मसीह जो हमारी कश्ती है, हमने उसकी तरफ भागना है, हमने उसकी तरफ दौड़ना है, हमने उसकी तरफ अपनी तवज्जो करनी है कि हम उसके पास आ जाएं और महफूज हो जाएं। दुनिया दौलत को ही अपना सब कुछ बना बैठी है। बरकतें तो खुदावंद उन्हें देता है, लेकिन उनकी तवज्जो खुदावंद की तरफ नहीं है, लेकिन उनका ज़हन उस तरफ नहीं है कि एक दिन हमने खुदावंद के पास जाना है। सिर्फ यही सब कुछ लेके नहीं हम दौलत जाएंगे। जिस तरह गीत गाते हैं, किथे तेरे माल खजाने हो राने माल लेने ने, जो असी माल खजाने जमा करने हैं तो इत्थे रह जाने, असी उन्होंने अपना पनाह दा शहर ना बनाइए, मुहक्कम कला ना बनाइए। हमने खुदावंद की तरफ रज्जू लाना है, उसकी तरफ हमने तवज्जो करनी है, और दौलत को हम अपना सब कुछ ना बना लें। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम हर हाल में दौलत को रास्त ज़िंदगी बसर करने की बरकत ना समझें, बल्कि दौलत पर कई जो लोग भरोसा रखते हैं, बिल आखिर वो क्या करते हैं, दुख उठाते हैं।
जो सिर्फ दौलत नहीं अपनी पनाह बना लेते है ना, वह भी साड़ा क्या कहते हैं कि वो ऐसे उसको बना के बैठ जाते, कहते हैं ना कि मुहावरा है, कुंडली मार के जैसे सांप दौलत पे बैठ जाता है, ये नून छिपा के रखो, ये सांप के रखो, लेकिन वो बाहर निकलने की, उस कुएं से निकलने की कोशिश नहीं करता कि हमें खुदावन की तरफ भी रजू लाना है जिसने ये सब कुछ दिया। हमने उसके पास जाना है, उससे बरकतें लेने के लिए, उसकी हजूरी में जाना है, उसका अजर लेने के लिए, रास्ते से जिंदगी बसर करना जीने का अजर अच्छी जिंदगी है जो दौलत से कहीं ज्यादा है, जो खुदावन की राह पे उसकी कदमों पर चलता है, उसकी पैरवी करता है, जो उसके कलाम की तरफ भागता है, जो उसकी तरफ रजू लाता है। दौलत से ज्यादा बेहतर जिंदगी यही है जो उसके पास आते हैं। सो हमें चाहिए कि हम अपने पूरे खानदान की तरह, जिस तरह नूह अपने घराने को, बीवी, बच्चों, बहू, बेटियां सब कुछ लेके, अपना पूरा खानदान, अपनी पूरी नस्ल को लेके वो कश्ती में सवार हो गया और महफूज हो गया, उसकी पनाह में आ गया। उसने कहा तूफान आने वाला है, दौड़ो, भागो, उसकी पनाह की तरफ भागो। लोगों को दावत दी, लेकिन लोगों ने उसकी मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई, लेकिन वो रास्तबाज बंदा था। उसने खुदा के हुक्म की तामील की और कश्ती बना के और महफूज और मजबूत पनाहगाह बना के वो उसमें बैठ गया और वो खानदान बच गया, और फिर वहीं से दोबारा आगे नस्लें चली हैं जो खुदावंद ने उन्हें महफूज रखा है। आज भी हम लोगों को पुकारते हैं, कहते हैं कश्ती में आ जाओ, बदी से बच जाओ, गुनाह से बच जाओ, दुनिया के कामों से बच के खुदावंद को वक्त दो, उसके पास आके उसका कलाम सुनो, कलाम पढ़ो, प्रस्तुत करो, दुआएं करो, शुक्रगुजारी करो उसके पास आके। दुनिया में क्यों आप फंस चुके हैं? ये दुनिया के काम तो इधर ही रह जाएंगे, ये ना खत्म होने वाले काम हैं। ये दुनिया की मसरूफियात ना खत्म होने वाली। जब तक हमारे अंदर सांसें हैं हम फिर भी कहेंगे ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी इकट्ठा कर लो, फलां के लिए भी ये कर लो, लेकिन ये सब कुछ इधर रह जाएगा। और नूह जो हमें पुकारता है कि कश्ती में आ जाओ, आज हमारा खुदावंद यीशु मसीह पुकार रहा है, कश्ती में आ जाओ, सवार हो जाओ, खानदान बच जाएंगे, नस्लें बच जाएंगी, आपके घराने बच जाएंगे और आप भी बच जाओगे कहर से, गजब से, आने वाली आफतों से। आप इस दुनिया में देख रहे हैं हर तरफ जंग जदल है, लोग मर रहे हैं, किसी को शुक्रगुजारी करने का भी मौका नहीं मिलता, किसी को चर्च जाने का भी मौका नहीं मिलता, किसी को उसके पास जाने का भी मौका नहीं मिलता कि हम अपने गुनाहों की तौबा कर सकें। तूफान, सैलाब, दहशतगर्दी हर तरफ है, लेकिन उनको मौका नहीं मिलता कि हम खुदावंद के पास आके अपने गुनाहों का इकरार करें, तौबा करें और बच जाए। हमें उसकी कश्ती में दाखिल होने के लिए हमने भागना है। अपने खानदानों को भी लेके नहीं, कली कली अपनी जान, कोशिश करें अपने खानदानों समेत उसकी कश्ती में सवार हो जाओ और आप बच जाओगे। जहाँ ज़बूर 91 उसकी 10वीं आयत में लिखा है, जो खुदावंद को अपनी पनाह समझते हैं वो उनके नजदीक भी आएगा। ये वादा नहीं कि कुछ बुरा ना होगा, बल्कि ये कि खुदावंद की तरफ रजू जो करते हैं, खुदावंद उन्हें अपनी पनाह में रखता है और अपनी हिफाजत में रखता है। दुनिया च रह के परेशानियां, मुसीबतां, बीमारियां, आजमाइशां ते आणगियां, लेकिन
जो उसकी तरफ रजू लाते हैं, जो उसको अपनी पनाह समझते हैं, जो उस पर अपना तवक्कल रखते हैं, जो उसे अपना मोहकम कला समझते हैं, जो उसको ऊंचा बुर्ज समझते हैं, जो उसको अपनी चट्टान समझते हैं, खुदावंद उनको बचा भी लेगा, उन्हें महफूज भी रखेगा, उन्हें वबाओं बलाओं से भी बचा लेगा, बीमारियों से भी शिफा दे देगा और हर तरह की बरकतें और उनकी जिंदगी की जो भी जरूरतें हैं वो पूरी भी करेगा। सिर्फ दौलत को ही अपनी पनाह का नाम बना ले, बल्कि उसकी तरफ भागो, दौड़ो, ताकि देर ना हो जाए, क्योंकि तूफान आने वाला है। और खुदावंद यीशु मसीह जब आएगा तो हमें उसका इस्तकबाल भी करना है। कौन करेंगे उसका इस्तकबाल? कौन करेंगे? जिन्होंने उसको अपनी पनाह बना लिया है, और हम उसके साथ उस पनाह के शहर में हम दाखिल भी हो जाएंगे। पनाह लेने को भागो और देर ना करो। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जिस तरह कलाम मुकद्दस में पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, अगर हम गौर करें इन बातों पर, इन कलाम की बातों पर अगर हम गौर करें जो खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है, तो हम बहुत सी चीजों से बच जाते हैं। बहुत सी जिंदगी में छोटी छोटी हम गलतियां करते हैं, हम उनसे भी बच जाते हैं, और फिर हम कोशिश करते हैं कि हम उसकी तरफ रज्जू लाएं। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, और इस पैगाम को जो खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है, दौड़ो, भागो और उसकी तरफ रज्जू लाओ, उसकी तरफ रज्जू लाओ। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे, और ये जो पाक कलाम है, जिंदा कलाम है, इसको आप सुन के दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें कि आज का ये दौर है जो हर तरफ हलचल मची है, अफरा तफरी है, जंग है, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, जंगें हर तरफ हैं, लोग बड़े बड़े बच्चे औरतें मर रहे हैं। तो हमें ये देखकर भी खौफ खाना चाहिए, डरना चाहिए कि हम खुदावंद की तरफ रजू लाएं और जल्दी करें और देर ना करें। दरवाज़ा खुला है, हमें इसमें दाखिल होना है, हम इस कश्ती में सवार हो जाएं ताकि हम बच जाएं, आने वाले अजाब से, परेशानियों से, मुसीबतों से हम बच जाएं। खुदावंद आप सबको बरकत दे, और इसी तरह आप खुदावंद के कलाम को जो कुछ बयान किया गया है, खुदावंद का पाक कलाम, आप दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें। हम दुआ करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, और अगर किसी की कोई परेशानी है, मुसीबत है, दुख में है, आजमाइश में है, कोई बीमार है, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे, और आज के कलाम के लिए भी हम शुक्रगुजारी करेंगे जो अपने लोगों के साथ वो करता है, बोलता है, कलाम करता है। सो आए हम खुदावंद की हजूरी में झुकेंगे और शुक्रगुजारी करेंगे। बताना दो। फरहंदा, ठीक है, दुआ करेंगे। हालेलुया। कातिल मुतलक बाप तेरा शुक्र करते हैं, खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू मेहरबान है, और खुदा हम तेरी आंखें खुदावन रूए ज़मीन पर देखती रहती हैं ताकि तू ज़रूरतमंदों की ज़रूरत को पूरा कर सके। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र हो, खुदा हम तेरा शुक्र हो तेरी तमाम नेमतों के लिए, तेरी तमाम बख्शिशों के लिए। ऐ बाप हम तेरा शुक्र करते हैं, ओ खुदा खास तौर से खुदा इस हक के लिए खुदा ये तूने हमें बाप कहने का शर्फ दिया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम ऐसे खुदा के बच्चे हैं। ओ खुदा जिस
جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تیرے کہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، خدا ہم تیرا شکر ہو۔ اے باپ تیرا شکر کرتے ہیں تیرے پاک کلام کے لیے، خدا ہم تیرا شکر ہو کہ خدا تو نے ہمارے راہ سامنے خدا اپنے بیٹے یسوع المسیح کے وسیلے سے دروازہ کھول رکھا ہے، تاکہ خدا جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، خدا ہم تیرا شکر ہو۔ ہاللیلویہ، خدا ہم تیرا شکر ہو۔ اے باپ تیرا شکر کرتی ہوں خدا تیرے بیٹے کے خون کی قدرت کے لیے، خدا ان کوڑوں کی مار کے لیے جو اس نے اپنے بدن پر کھائے تاکہ ہم شفا پائے۔ ہاللیلویہ، اے خدا اس بیٹی کو میں تیرے حضور میں لاتی ہوں، فرخندہ کو خدا میں تیرے حضور میں لاتی ہوں۔ خدا اس کی جسم میں، جان میں، روح میں خدا جو بھی کمی اور کمزوری ہے، whatever is the cause of sickness, let it be gone in the name of Jesus. Hallelujah. 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 فرخندہ میں یسوع المسیح کے نام میں تمہیں شفا دیتی ہوں، تمہیں ایمان کی قوت دیتی ہوں۔ او ہاللیلویہ، خدا ہم تیرے شکر ہو۔ ہاللیلویہ، خدا ہم تیرے شکر ہو۔ ہاللیلویہ، اے خدا میں اپنے آپ کو خدا حاضر جماعت کی ایک ایک بہن کو، خدا ان سب لوگوں کو جو خدا واچ کر رہے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے، خدا ان سب لوگوں کو خدا میں تیرے فضل کے تخت کے سامنے لاتی ہوں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، خدا جبکہ بے دینی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، اے خدا ہمیں قوت دے کہ ہم تجھ کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔ خدا ہمیں امان کے اوپر قائم رہنے کی قوت دے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، خدا تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری تمجید ہو، خدا تیرا شکر ہو۔ ہاللیلویہ، اے خدا ہمیں ان ساری اسٹریٹجیز کو جو تیرے بندوں کے خلاف ہیں تیرے یسوع المسیح نام سے رد کرتی ہوں اور ملک پاکستان میں امن چاہتی ہوں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، خدا تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تمجید ہو، خدا تیرا شکر ہو۔ حکومت اور اختیار والوں کو خدا میں تیرے ہاتھوں میں سونپتی ہوں، اور خدا تیری الہی محبت اور تیرا خوف خدا ان کے لیے مانگ ہوں، تاکہ خدا تیرے لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ انصاف کے ساتھ وہ پیش آ سکیں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، خدا تیرے شکر ہو۔ خدا اپنی کلیسیا کے لیے، ایک ایک خاندان کے لیے خدا میں تیرے آگے خدا جھکتی ہوں اور خدا تجھ سے برکت مانگتی ہوں۔ خدا ایک ایک خاندان کو جو خدا کسی مجبوری کی وجہ سے، لاچاری کی وجہ سے خدا چرچ میں آنے سے قاصر ہیں، خدا تیری حضور پاک مموری تیرے روح کی قدرت خدا ان کے پاس پہنچے اور خدا تجھے جانے اور پہچانے اور خدا تیرے شکر ادا کرے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ، خدا تیرے شکر ہو۔ خدا اس گھر کی خدا جس پہ بیٹھ کر خدا ہم تیری پرستش کرتے ہیں، خدا تجھ سے کلام سیکھتے ہیں، ایک ایک ضرورت کو خدا تیرے حضور میں لاتی ہوں اور خدا تیرا فضل والا ہاتھ خدا مانگتی ہوں۔ خدا ہاللیلویہ، خدا تیرے شکر ہو۔ خدا میڈیا کے سارے پروگرام کو خدا تیرے ہاتھوں میں سونپتی ہوں۔ خدا تیرا نام جلال پائے ہماری کوشش میں، خدا تیری قدرت خدا اور تیری مصلحت ٹھہری رہے۔ ہاللیلویہ، خدا تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیری تمجید ہو، خدا تیرا شکر ہو، یسوع المسیح کے نام میں آمین۔ ہاللیلویہ۔ ہم شکر گزاری کریں گے آج کی زندہ کلام۔ اے بحر و بر کے خالق اور مالک، میں دل کی گہرائیوں سے تیرا شکریہ بجا لاتی ہوں
आज की इस मुकद्दस महफिल के लिए जो तू अपने लोगों के लिए सजाता है, मैं तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ। तेरे जिंदा कलाम के लिए तेरा शुक्र करती हूँ जो खुदावंद तो हम तक पहुँचाता है, हमारी मदद करता है और कलाम के वसीला हमारी रहनुमाई करता है, हमारी काट छांट करता है, हमारी तरबियत करता है, हमें तभी करता है। ऐ खुदावंद हम सबको ये फजल बख्श दे कि जो कुछ आज तेरे कलाम में से हमने सीखा है कि हम कश्ती में दाखिल हो जाएं, दौड़ें और उसकी तरफ भागें और कश्ती में सवार हो जाए, क्योंकि दरवाजा आज भी खुला है। यीशु मसीह हमारी कश्ती है और दरवाजा खुला है, हमने उसमें से दाखिल होके खुदावंद आसमान की तरफ जाना है। हम सबकी मदद फरमा, इस कलीसिया को खानदानी तौर पर एक एक घराने को तो बरकत दे खुदावंद, अपनी पनाह में रखना। ज़िशान को हिकमत, दनाई और बरकत दे जो तेरे पाक और जिंदा कलाम को खुदावंद मीडिया के थ्रू लोगों तक पहुंचाता है, पहुंचाने में मदद करता है। खुदावंद उसे बरकत दे, उसके घराने को बरकत दे। और जितनी तेरी बेटियां इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, तेरी रिफाकत में आई हैं, उनके लिए, उनके घरानों के लिए, खुदावंद बच्चों के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। खुदावंद ये घराने तेरी तरफ रजू लाए और तेरी इबादत करें और तेरी तरफ तवज्जो करें, तेरी तरफ निगाह लगा के रखें, क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें। ऐ खुदावंद इन्हें फजल दे कि खुदावंद ये सब तेरी तरफ रजू लाए और तुझसे बरकतें पाए। आए खुदावंद हम सबको फजल बख्श दे कि हम इसी तरह तुझ में खुदावंद शामिल होते रहे, तेरी रिफाकत में आते रहे। जो मीडिया के थ्रू हमें वॉच करते हैं, इस रिफाकत में शामिल होते हैं, एक एक घराना, एक एक रूह, उनके लिए, खानदानों के लिए मैं बरकत, सलामती, खुशहाली, सरफराजी की दुआ मांगती हूँ। उन खानदानों को बरकत देना, कलाम की पहचान और समझने की तौफीक अता करना, ईमान में बढ़े, तुझ में कायम रहें, क्योंकि इस बेदीनी के दौर में खुदावंद तू हमें ईमान की मजबूती अता कर, ताकि खुदावंद हम ईमान में तेरी पैरवी करें, तेरी तरफ बढ़ते चले जाएं और तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल दें, क्योंकि तू इस लायक खुदावंद है, हशमत के लायक, बुजुर्गी के लायक, तारीफ के लायक, हम के लायक तू ही है खुदावंद। आए खुदावंद इस वक्त ये दुआ को सुन कबूल कर, मांगती हूँ तेरे पाक बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी हो जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शे, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हमें आजमाइश में न बल्कि बुराई से, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे, आमीन। खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तारीफ, जिसने हमें ये मौका फराहम किया है। ये भी उसका तरस और उसका रहम है और उसका फजल है हम पर, जो हम उसकी बारगाहों में, उसकी हजूरी में आए हैं, उसके साथ हमने टाइम स्पेंड किया, वक्त गुजारा, और यही उसके साथ जो हम वक्त गुजारते हैं, इत्मीनान है, खुशी है, शादमानी है, और हर तरह की आजमाइशों से बहाली भी हमें मिलती है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे, और इसी तरह आप हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ शामिल होते रहें, रिफाकत रखें। खुदावंद आपको